ایک وقت کا قصہ ہے، سحرپور گاؤں میں اکبر نام کا بادشاہ اپنی بیٹی اور رعایا کے ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا درخت تھا جس میں روز سونے کا آم لگا کرتا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک بادشاہ کی بیٹی غائب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے اور وزیر کو بلواتا ہے۔ وزیر، میری بیٹی اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے ہر حال میں میری بیٹی ڈھونڈ کر لا کر دو۔ بادشاہ سلامت، میں نے شہزادی صاحبہ کو بہت ڈھونڈا پر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وزیر، تم ایک کام کرو، کل پورے گاؤں میں اعلان کروا دو، جو بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے سونے میں تول دوں گا۔ جو حکم بادشاہ سلامت، میں کل پورے گاؤں میں اعلان کرواتا ہوں۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے اور وزیر جانے لگتا ہے تو اس کی نظر درخت پر پڑتی ہے، وہاں سونے کا آم نہیں لگا ہوتا۔ وزیر پریشان بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا وزیر، تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تم تو گاؤں میں اعلان کروانے جا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں جا ہی رہا تھا پر غضب ہو گیا، درخت پر آج تو سونے کا آم نہیں لگا۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا لڑکا اپنی بیوی نصیبو کینچی کے ساتھ رہتا تھا۔ ارے بیٹے، بازار جا، سبزی لے کر آتا کہ میں جلدی سے کھانا بنا کے اپنی فرینڈ بو کے پاس جاؤں۔ آج مجھے اپنی فرینڈ بو سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ بیگم، تو ایک کام کر، اپنی فرینڈوں کو گھر پر ہی بلا لے، پھر سکون سے ان سے گپ شپ لگائیں۔ نہیں بلا دوں گی، میں اپنے گھر میں نہیں بلا دوں گی، مجھے پتہ ہی تو اس لیے بول رہا تھا کہ تم پر لائن مار سکے بے۔ اور موٹی ناک والی ہو تو اپنے شوہر پر ایسا الزام مت لگا، تیرا شوہر بہت غیرت مند اور معصوم شریف انسان ہے۔ جتنا تو شریف ہے مجھے سب پتہ ہے، اب زیادہ بات تیرا بڑا جا کے سبزی لے کر آ۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بٹو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، میٹھا سبزی لینے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک جگہ رش نظر آتا ہے۔ یہ یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ جا کر دیکھتا ہوں۔ میٹھا وہاں آ جاتا ہے۔ سنو گاؤں والوں، سنو، بادشاہ سلامت کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت کا حکم ہے، جو بھی ان کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا بادشاہ سلامت انہیں سونے میں تول دیں گے۔ میٹھا یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ میں جلدی سے سبزی لے کر گھر جاتا ہوں اور اپنی بیگم کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں۔ پھر میٹھا سبزی لینے بٹو کی ریڑھی پر آتا ہے۔ بٹو، جلدی سے 1 کلو پیاز اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو۔ میٹھے بھائی، وہ تو میں دے دیتا ہوں، پر یہ تو بتاؤ وہاں پر اتنا رش کیوں لگا ہوا تھا؟ بٹو، اکبر بادشاہ کی بیٹی گم ہو گئی ہے، بادشاہ نے اعلان کروایا ہے، جو بھی اسے ڈھونڈ کر لائے گا بادشاہ اسے سونے میں تول دے گا۔ یہ سن کر بٹو سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں نہ بادشاہ سلامت کی بیٹی کو میں بھی ڈھونڈوں؟ ہمارے بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کے غم میں بہت پریشان ہوں گے۔ بٹو میٹھے کو سبزی دے دیتا ہے اور میٹھا گھر آتا ہے اور اپنی بیوی نصیبو کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ میٹھے، یہ تو نے بہت بڑی بات بتائی ہے، چل میٹھے بادشاہ کے دربار میں چلتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ کر لائیں گے تیری بیٹی کو۔ ہاں بیگم، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر ہم بادشاہ کی بیٹی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو بادشاہ ہمیں سونے میں تول دے گا اور ہم امیر و کبیر بن جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف بٹو بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو بادشاہ سلامت کے ساتھ بہت برا ہوا۔ بیٹا، تو بادشاہ سلامت کے پاس جا اور ان کی بیٹی ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر۔ بٹو گھر سے نکلتا ہے۔ دوسری طرف میٹھا اور نصیبو بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، آپ نے گاؤں میں جو اعلان کروایا تھا ہم نے وہ سنا ہے، ہم ڈھونڈ کر لائیں گے آپ کی بیٹی کو۔ لڑکے، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر تم لوگ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں سونے اور زیورات سے مالا مال کر دوں گا۔ بادشاہ ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تب بھی بٹو آ جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھے پتا چلا ہے کہ شہزادی صاحبہ گم ہو گئی ہیں، مجھے ان کے گم ہونے کا بہت دکھ ہے، میں انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پر بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ محل میں لگے درخت کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہے، نہ جانے کون اس درخت سے سونے کا آم چوری
चोरी करके ले जाता है। हाँ मेरा वजीर ठीक कह रहा है। तुम लोग एक काम करो, मीठे और नसीबो, तुम दोनों मेरे दरख्त पर नजर रखो और पता लगाओ वो चोर है कौन जो मेरे दरख्त से सोने का आम चोरी करके ले जाता है। और बिट्टू तुम महल से घोड़ा लेकर जाओ और मेरी बेटी को जंगल में जाकर तलाश करो। जो हुक्म बादशाह सलामत, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात हो जाती है। मीठा और नसीबो दरख्त पर नजर रखकर बैठ जाते हैं, जबकि बिट्टू घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। बिट्टू जंगल में शहजादी को बहुत ढूंढता है। इस तरह सुबह हो जाती है। मीठा और नसीबो भेड़िए की खाल लेकर बादशाह के पास आते हैं। बादशाह सलामत, हमने सोने के आम चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया और उसका गोश्त कुत्तों को खिला दिया और उसकी खाल लेकर आपके पास हाजिर हो गए हैं। पर वो चोर कौन था? बादशाह सलामत, वो चोर भेड़िया था जिसे हमने अपनी जान पर खेल के मार दिया। ये सुनकर वजीर और बादशाह हैरान हो जाते हैं। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। भला भेड़िया भी दरख्त पर चढ़ सकता है? वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। हाँ लड़के, मेरी बेटी का कुछ पता चला? बादशाह सलामत, मैंने शहजादी साहिबा को बहुत ढूंढा मगर उनका कुछ पता नहीं चला। बादशाह सलामत, ये लड़का एक नंबर का नालायक है। हम जाएंगे और कल आपकी शहजादी को ढूंढ कर लाएंगे। फिर अगला दिन होता है। बादशाह देखता है आज दरख्त पर सोने का आम गायब होता है। बादशाह समझ जाता है ये लोग झूठे हैं और बादशाह दरख्त पर नजर रखने का बिट्टू को बोलता है और मीठा और नसीबों को जंगल जाने का कहता है। ठीक है बादशाह सलामत, हम जाएंगे जंगल, पर हमें महल का शाही घोड़ा सवारी के लिए दे दें। नहीं तुम लोग पैदल जाओ और सुकून से मेरी बेटी को ढूंढो। अगर तुम लोग ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें सोने जेवरात के साथ साथ शाही घोड़ा भी इनाम में दूंगा। ये सुनकर मीठा और नसीबो खुशी खुशी महल से निकलते हैं और जब रात होती है तो बिट्टू दरख्त पर नजर रखकर बैठ जाता है तो देखता है कि एक खूबसूरत सा परिंदा आता है। परिंदा सोने का आम ले जाता है। ओए परिंदे रुक, क्यों सोने का आम चोरी करके ले जा रहा है? पर उसका एक पंख टूटकर गिर जाता है। बिट्टू वो पंख उठाता है और बादशाह के पास आता है और बादशाह को सारी बातें बताता है। लड़के, इसका मतलब वो परिंदा चोर है। तुम एक काम करो, आज रात उस परिंदे को हर हाल में पकड़ो। फिर रात हो जाती है। बिट्टू परिंदे के इंतजार में बैठा होता है। परिंदा आता है और आम तोड़कर ले जा रहा होता है। बिट्टू घोड़े पर बैठकर उसके पीछे निकल जाता है और पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। मीठा और नसीबों की नजर बिट्टू पर पड़ती है। वो भी बिट्टू के पीछे चल पड़ते हैं। जबकि परिंदा एक गुफा के अंदर चला जाता है। बिट्टू रुक जाता है और सोचने लगता है, मुझे अब इस गुफा में जाना होगा और चोर परिंदे को पकड़ के बादशाह सलामत के हवाले करना होगा। बिट्टू गुफा के अंदर आ जाता है तो देखता है वो परिंदा एक पिंजरे में बंद होता है। बिट्टू आगे बढ़ता है और जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है तो एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। लड़के तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिंदे को हाथ लगाने की? वो चुड़ैल बाजी, ये परिंदा चोर है। ये बादशाह सलामत के महल से सोने का आम चोरी करके लेकर आता है। लड़की, ये परिंदा नहीं बादशाह की बेटी है जिसे मैंने परिंदा बना कर रखा है। चुड़ैल बाजी, कुछ तो रहम करें। बादशाह सलामत अपनी बेटी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान है। खुदारा उन पर तरस खाए। लड़के, मेरी एक ही प्यारी बकरी थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मुझे शक है उस बादशाह ने मेरी बकरी का शिकार करके मार दिया, इसलिए मैंने उससे बदला ले लिया और उसकी बेटी को परिंदा बना कर कैद कर लिया। पर चुड़ैल बाजी, हो सकता है बादशाह सलामत ने आपकी बकरी का शिकार ना किया हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। लड़के, अगर तुम्हें लगता है कि वो जिंदा है तो उसे मेरे पास ले आओ और बादशाह की बेटी को ले जाओ। मीठा और नसीबो छुपे ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। बेगम, अगर हम इस चुड़ैल की बकरी ढूंढने में कामयाब हो गए तो शहजादी हमें मिल जाएगी। फिर हम शहजादी के बदले बादशाह से सोने और जेवरात लेकर अमीर हो जाएंगे।
बकरी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? हाँ बेगम, यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। अब तू ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छा सा आइडिया निकाल। मीठे, क्यों ना हम कोई भी बकरी लेकर चुड़ैल बाजी को दे दे और बोले ये बकरी तेरी है। पर बेगम, चुड़ैल अपनी बकरी को पहचानती होगी। तो मीठे, हम बोल देंगे कि बकरी की ये हालत तेरी जुदाई की वजह से हो गई है। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। चल फिर चलते हैं और कोई बकरी लेकर आकर चुड़ैल को देकर उससे शहजादी ले जाते हैं। फिर मीठा और नसीबो बकरी लेने निकल पड़ते हैं, जबकि बिट्टू भी बकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वो बकरी को ढूंढता ढूंढता एक तालाब पर पहुंच जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ और प्यास भी बहुत लगी है। इस तालाब से पानी पी लेता हूँ, फिर बकरी को ढूंढना शुरू करूँगा। फिर बिट्टू तालाब का पानी पीता है। वो जादुई पानी होता है। हाय, मुझे इतनी नींद क्यों आने लग गई? मैं सो जाता हूँ, फिर उठकर बकरी की तलाश करूँगा। बिट्टू सो जाता है और ख्वाब में देखता है बकरी जंगल में एक कुएं के अंदर फंसी हुई है। बिट्टू की घबराकर आंख खुल जाती है और वो भागता भागता कुएं के पास पहुंचता है और देखकर हैरान रह जाता है बकरी कुएं में ही होती है। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, चुड़ैल बाजी की बकरी मिल गई। अब मैं शहजादी साहिबा को उससे आजाद करवा लूँगा। जबकि मीठा और नसीबो बकरी लेकर गुफा के अंदर आ जाते हैं। चुड़ैल बाजी किधर हो? सामने आओ, हम आपकी बकरी लेकर आ गए हैं। तो चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल बाजी, देखो देखो, हम आपकी बकरी ले आए। अपनी बकरी ले लो, शहजादी को मैं दे दबो। और झूठे लोगों, ये मेरी बकरी नहीं, इसका रंग तो कोई और था। नहीं नहीं चुड़ैल बाजी, ये आप ही की बकरी है। असल में इसका रंग आपकी जुदाई की वजह से उड़ गया है। तभी बिट्टू बकरी लेकर आ जाता है। चुड़ैल, ये लो अपनी बकरी। मैंने कहा था ना, बादशाह सलामत ने इसे नहीं शिकार किया। हाँ लड़के, तुम ठीक कह रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी शहजादी को उसकी असली हालत में लेकर आती हूँ। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और वो परिंदा शहजादी बन जाता है। मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? लड़की, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हें कैद किया था, पर इस लड़के बिट्टू की वजह से तुम आज अपनी इसी हालत में आई हो। बिट्टू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे अब्बा हुजूर के पास ले चलो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। फिर बिट्टू शहजादी को लेकर वहाँ से चला जाता है और दरबार में आ जाता है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बिट्टू बादशाह को सारा वाकया बताता है। बिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपनी जान पर खेलकर ऐसा किया। तुम बहुत ईमानदार हो। जी अब्बा हुजूर, बिट्टू बहुत बहादुर और ईमानदार है। बादशाह इतना खुश होता है कि शहजादी की बिट्टू से शादी करवा देता है। जबकि चुड़ैल को इतना गुस्सा आता है कि वो मीठे और नसीबों को जादू से बकरी बना देती है।